Now we will discuss about gradient descent. Basically, gradient descent क्या है? एक optimization algorithm है that we use to minimize the loss function iteratively. It works by repetitively adjusting the input variables in the direction that reduces loss function's value most. तो मैं पहले भी कहा हूँ, हमारा जो मेन एम होता है ये लॉस फंक्शन का वैल्यू को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है, राइट। तो ग्रेडियंट डिसेंट वही काम करता है। ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन आइटरेटिवली। क्लियर? Sorry, it can end up at different minimum points depending on the function and the initial starting point. Now, what is gradient descent? This is a linear regression model. हाँ, ये भी important line है, आप लोग याद रख लेना। Gradient descent exactly क्या है? एक linear regression model है that finds the equation of the straight line that is used to estimate the output. And the straight line we know y is equal to mx plus c. Y is our target or dependent variable. X is our input variable. C is the intercept, and m is the slope of the straight line, the angle, right? So linear regression focuses on finding the best fit line for regression tasks, while simple perceptron aims to classify the data into different classes. तो linear regression क्या करते हैं? एक best fit line find out करते हैं, while perceptron क्या करते हैं? डाटा को different classes में उसको divide करते हैं, right? Okay. So you can consider this. This is the set line y is equal to mx plus c, right? और जो जिस एंगल जिस मतलब इंटरसेप्ट जो है ये c, इंटरसेप्ट क्या है? जिस पार्टिकुलर इसमें उन्होंने कट किया है, राइट, उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। और जो m है, दिस m इज द स्लोप। स्लोप मतलब किस एंगल से, ये अगर पैरेलल के साथ हम देखेंगे तो व्हाट इज द एंगल दैट लाइन मेक्स with this माने horizontal line, right? So that is theta से, so m is equal to tan theta. So आप पूरा इक्वेशन समझ में आ गया, y is equal to mx plus c, and c is the y cut, that कितना and कितना पोर्शन उन्होंने y एक्सिस के साथ काट किया है, इंटरसेप्ट बोलते हैं। और m जो है क्या एंगल, किस एंगल से, सपोज ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पैरेलल के साथ किस एंगल में पाए, ये क्या है, ठीक है, क्या है कि एंगल बनाया है, तो दैट इज थीटा। तो जो टेन थीटा है यही आपका आपका एम है, राइट। तो ये होता है हमारा रिग्रेशन लाइंस। नाउ working on gradient descent, say if m and c are plotted against msc, it forms a ball shape, right? m को और c को अगर हम प्लॉट करेंगे तो एमएससी क्या है? एरर है, ऑब्वियसली मिनिमम स्क्वाड एरर। तो ये एक बॉल शेप लेते हैं। द बॉटम ऑफ द बॉल शेप, दिस बॉटम ऑफ द बॉल शेप काफ इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। ये जो है ये मिनिमम वैल्यू। एट दिस पॉइंट द वैल्यूज ऑफ सी एंड एम आर द ऑफ देयर ऑप्टिमल वैल्यूज। So deriving a gradient descent or ascent algorithm, the algorithm iteratively updates weights to minimize overall error or objective function। तो ये क्या करते हैं, weights को अपडेट करते हैं ताकि आपका मिनिमाइज कर पाए एरर को। इट कंसीडर्स द लोकल ग्रेडियंट indicating the direction of the largest change. Weights are updated by taking a step proportional to the gradient. Weights are updated taking a step proportional to the gradient, and gradient descent accelerates the convergence towards the optimum. Okay. Now, step one. Initialize the model's parameters by selecting random values as a starting point for the optimization process. क्या कर रहे हैं हम? मॉडल पैरामीटर्स को रैंडम वैल्यूज देके स्टार्ट कर रहे हैं। ये फंक्शन वैल्यू x रैंडम वैल्यू है, राइट। Then take step in the direction of the steepest ascent, बढ़ जहां बढ़ रहा है,
and maximizing the objective function to iteratively approach to the optimal solution. तो take step into the direction of stabilization. यहाँ पे ये होगा डायरेक्शन जहाँ पे बढ़ रहा है objective, maximizing the objective function to iteratively approach to the optimal solution. Then step 1 and step 2 को repeat करो until a stopping criteria meets, enabling continuous parameter updates and refinement towards the optimal solution. ठीक है? It stops iterating if the next step reduces the objective function or meets a termination condition. ठीक है, क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्टिव इस केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट स्टेप में मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू कम हो गया तो हम रुक जाएंगे, स्टॉप करेंगे, या तो अगर एक टर्मिनेशन कंडीशन पहुंच गया तो भी हम स्टॉप करेंगे, इंडिकेटिंग द एल्गोरिथम हैज रीच्ड टू ए सैटिस्फैक्टरी और ऑप्टिमल सॉल्यूशन. The optimization process reduces the step size to take smaller, more precise steps towards the optimized solution, improving the convergence and accuracy. Okay. Now, the optimization process, gradient ascent observation, optimization process aims to converge to a local maximum by iteratively updating the parameters and adjusting the step size, yielding a potential optimal solution. Right. ascent की बात कर रहे हैं हम. So what are the impacts on the neural network? Gradient descent का क्या क्या है? In gradient ascent का, in gradient ascent, the y-axis is the function value. The gradient is used to determine whether the weight should change. ठीक है? Y-axis function value है. The gradient is used to determine whether the weight should change. If the gradient is positive, then the weights are decreased. Okay? If the gradient is negative, then the weights are increased. ग्रेडियंट अगर पॉजिटिव है तो वेट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है. अगर ग्रेडियंट नेगेटिव है वेट को इंक्रीज किया जा रहा है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रेडियंट एसेंट इज नॉट टू मिनिमाइज बट टू मैक्सिमाइज द फंक्शन. ये इसमें कंफ्यूज मत होना. ग्रेडियंट एसेंट में हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं. ठीक है, ये एसेंट है, एसेंट. ठीक है, नॉट मिनिमाइज. द लर्निंग रेट क्या है? लर्निंग रेट तो अभी हमने दिखाया भी है लास्ट क्लास में. दिस इज यूज टू कंट्रोल द चेंजेस मेड टू द वेट एंड biases to minimize the error. Right, it is used to analyze how an error will change when the values of weight and bias are changed by a unit. ये क्या करते हैं, इसके जरिए हम देखते हैं कि कैसे एरर चेंज होता है जब हम वेट्स एंड बायसेस को चेंज करते हैं 1 यूनिट. राइट, देखो ये है हमारा पूरा कंप्लीट इक्वेशन से. W ग्रेडियंट तो ये है आपका. ठीक है, इनिशियल वेट, प्रोबेबल कॉस्ट मिनिमम से धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है, ये मिनिमम. ये जनरली लर्निंग रेट हम 0.01 जब लेते हैं तो सेफ रहता है. बहुत ज्यादा लेने से भी पूरा फास्ट होगा, बहुत कम लेने से भी स्लो होगा. ठीक है, तो समझ में आ गया. हमने अभी डिस्कस किया आपका ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में. राइट, ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में बात किया था. राइट, ये एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है और इससे हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट से हम क्या करते हैं, जो लॉस फंक्शन है उसको मिनिमाइज करते हैं. इट वर्क्स बाय रिपीटेडली एडजस्टिंग द इनपुट वैल्यूज इन द डायरेक्शन दैट रिड्यूसेस द लॉस फंक्शंस वैल्यू द मोस्ट, and it can end up different minimum points depending on the function and initial starting point. और इसका जो इक्वेशन है लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है. ठीक है, ये देख लिया था. y इक्वल टू mx प्लस थी. m स्लोप है, tan थीटा वैल्यू. थीटा मतलब ये लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल किया है, और c y काट है, y इंटरसेप्ट है, कितना पोर्शन उन्होंने काट किया है. और अगर हम एम सी को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट एम एस सी तो एकदम बॉटम में हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा कॉस्ट फंक्शन का. उस ठीक है, जो ग्रेडियंट डिसेंट के केस में हम एरर को मिनिमाइज करते हैं. ठीक है, इट कंसीडर लोकल ग्रेडियंट इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द लार्जेस्ट सेंस.
वेट को अपडेट करते रहते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट एक्सेलरेट्स कन्वर्ट्स टुवर्ड्स द ओपिनियन। ग्रेडियंट एक्शन अलग होता है, ये हम मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है। it takes the steps in the direction for maximizing the objective function, ठीक है। ये तब स्टॉप होता है जब इसका एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाते हैं, तो ग्रेडियंट एसेंट, राइट। So impact क्या होता है in gradient action? Y-axis is the function value. Gradient is used to determine the weight should change. If gradient is positive, weights are decreased. Gradient is negative, then weights are increased. The object of the gradation is not to minimize but to maximize a function. Learning rate लिखिए, जिस रेट से हम weight and bias को चेंज करने का जो रेट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि एरर को मिनिमाइज कर पाए। It is used to analyze how an error will change when the values of weight and biases are changed by a unit। ठीक है, 0.01 नॉर्मली आपका बेस माना जाता है। ये सब हम पार्सेप्टेंस के केस में पढ़ा था। पार्सेप्टेंस का लिमिटेशन ये है कि क्या ये ओनली वर्क्स व्हेन वी कैन सी दैट द वैल्यूज आर बाइनरी सेपरेबल। द थ्रो ए पर्सन सिंपल though a person is perceptron is simple and efficient supervised learning algorithm, it has certain limitation. Like the output of a perceptron takes only one or two values, 0 or 1. It works only when the data are linearly separable. The two-dimensional data shown here is not linearly separable। क्योंकि क्यों 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 सेपरेबल नहीं है? क्योंकि आप एक लाइन ड्रॉ करो, सपोज सबको आप डिवाइड कर पाओगे? नहीं, नहीं, राइट। तो नो सिंगल स्ट्रेट लाइन कैन सेपरेट द सर्कल और प्रोसेस। इसलिए इस टाइप का डेटा के लिए आपका परसेप्ट्रॉन काम नहीं कर सकते हैं। An example of linearly separable data and a straight line that perfectly separates the two groups. This is positive example on this side. It's negative example. Weight vector that defines the hyperplane. On the other side, dot z x w plus b less than 0. Negative example. Hyperplane is equal to x dot zx plus b is equal to 0. Limitation convergence and the perceptron algorithm struggle with the data that is not linearly separable as it fails to converge to a solution, leading to an endless cycle of weight update। तो ऐसे केस में वो क्या होगा? कन्वर्ज नहीं हो पाएगा और एक एंडलेस साइकिल ऑफ वेट अपडेट में घुस जाएगा, ठीक है। सेटिंग ए लिमिट ऑन द आइटरेशन कैन प्रिवेंट। अगर आप लिमिट नंबर ऑफ आइटरेशन को लिमिट कर दिया तो ठीक है, इट कैन प्रिवेंट द एंडलेस साइकिल, but it does not address the core problem of perceptron's inability to accurately classify data that is not linearly separable। इसके लिए हमें अलग एल्गोरिथम में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि perceptron is a type of artificial neuron used for binary classification in machine learning. Forward propagation generates an output in a perceptron model, okay, and can pass through input through weights and activation function. Back propagation involves adjusting the weights of the inputs in order to minimize the error in the perceptron model। जो हमने देखा था वेट का फॉर्मूला जो था, वेट न्यू, ये फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, आप लोग भूलना मत। वेट ओल्ड जो है, ठीक है, और माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, और ये है लर्निंग रेट, अभी जो बताया था 0.01 अच्छा माना जाता है। देन डेल डेल डब्ल्यू ओल्ड ऑफ क्या एरर मिला है, क्या हमें कॉस ई भी लिख सकते हो या तो एल भी लिख सकते हो। एल मतलब लॉस, ठीक है, एल मतलब लॉस, और इसको हम कभी कभी ई भी लिखते हैं, ये मतलब एरर। और एरर कैसे मिलता है? जो आपका प्रेडिक्शन आउटपुट है और जो मतलब एग्जैक्ट है और जो हमने प्रेडिक्ट किया, इन दोनों के डिफरेंस है, इसको बोलते हैं हम एरर। और नॉर्मली यहाँ केस में हम क्या कर रहे हैं? एमएससी ले रहे हैं, मिनिमम स्क्वाट एरर, ठीक है। पर ये फॉर्मूला याद रख लेना, डब्ल्यू न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू डेल डेल डब्ल्यू ओल्ड ऑफ एरर और लॉस, ठीक है। ये वेट प्रोपागेशन का एल्गोरिथम जो कि वेट को अपडेट के लिए सही है, बट बहुत ज्यादा अगर चेंज होने से क्या होगा? ये कम होते जाएगा, ये वैल्यू एकदम ना के बड़ा हो जाएगा, तो वेट सेम रह जाएगा, तब उसको बोलते हैं हम क्या? वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं?
वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, जब ग्रेडियंट बहुत कम होते जा रहे हैं तो आपका ये वैल्यू सेम हो जाता है, ठीक है। तो gradient descent is a technique used to minimize the cost function in a neural network. Perceptrons have limitations as they can only handle linearly separable data. ये इक्वेशन मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, प्लीज रिमेम्बर दिस इक्वेशन. So let's go through some question. What is the importance of weight in a perceptron? Perceptron में weight का क्या important है, सब देखो. टू डिटरमाइन, मुझे तो लगता है क्या करते हैं हम, टू डिटरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ inputs. Let's see whether it is correct or not. Yes, this is correct. Determine the importance of input. What is the next question? Let's come to next question. Sorry. What is an activation function in a perceptron? Activation function क्या करता है? An equation that determines the output of a neural network model. Right? या output को determine कर रहा है? Yes or no? Let's check. Yes, this is an equation that determines the output of a neural network model. Next, what is the use of cost function in a neural network? Cost function क्या करते हैं हम? It generates an output from the input layer to the output layer. It measures the error in the, it minimizes the error by changing the weights. It finds the optimal. Actually, ये क्या कर रहा है? ये error दिखा रहे हैं कि नहीं? Yes or no? Error दिखा रहे हैं, right? तो ये हो गया आपका it measures the error in the network. Very good. Thank you. इसमें बहुत ही ज्यादा कठिन कुछ मैथमेटिक्स भी था जो हमने पढ़ा. बेसिकली ये जो वेट अपडेट के जो है, इसमें थोड़ा आप लोगों को ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ेगा. हाँ, और ये वेट अपडेट का एक ही फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है. मैं बार बार बोल रहा हूँ ये, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. और इसमें जो है, जस्ट ए मिनट, ये होल है माइनस ये लर्निंग डेट है, डेल डेल डब्ल्यू ओल्ड ओल्ड, ठीक है, पेन से चलता है ऑफ दिस लॉस. ये यहाँ पे ये जो, सॉरी इसको मतलब ये जो है ना, इसको हम एक्सपांड करते हैं सेन रूल के थ्रू. सेन रूल के थ्रू, और इस सेन रूल में क्या है कि ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, उससे हम निकालते हैं. कैसे? उसके ऊपर हम देखते हैं कि कौन सी किस, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ. आप जैसे कि देख लीजिए, अब जब मैं इसके लिए निकालूंगा, ये डिपेंड कर रहा है O1 के ऊपर, O1 डिपेंड कर रहा है नेट H1 के ऊपर. नेट H1 में दो चीज होता है, या तो इसके ऊपर जो इनपुट आ रहा है और जिसको आउटपुट जा रहा है, राइट. देन ये W1 के ऊपर है. अगर W5 तक ले रहे हैं तो ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट. समझ में आ रहा है? लेट्स सी, इसका आप अभी यहाँ पे देख सकते हो, डेल ई टोटल डेल W5 यहाँ तक हम ले रहे हैं. तो डेल ई टोटल डिवाइड बाय डेल आउट O01, करेक्ट, इनटू डेल आउट O01, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेल नेट 01 के ऊपर. इसके नेल ये जो आउटपुट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनटू डेल नेट 01 डिवाइडेड बाय डेल W5. दैट्स इट. सो कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा. थैंक यू. हाँ, ओके.